Good morning to all the students of class 8. Welcome to all of you in mathematics class. Our topic is cube and cube root. Okay. Today we will discuss about finding cubes of two-digit number by a shortcut method or finding or using identities. Okay. Here is one by one I would like to discuss with you. Okay, and explain to you. Watch this video to all of you. Finding the cube of a two-digit number by using identity. Okay, here is given a plus b. This is the identity, that is algebraic identity. We will also discuss once more in next chapter, in algebraic expression chapter. Okay, and here is given a plus b whole cube equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. This is identity of a plus b whole cube. That means when we multiply a plus b 3 times, then this will be the result. Okay, this is the formula also, identity also. Okay, and we have to find out this method. By this method, two-digit number. Okay, we will also find the cube of two-digit number by this method. That is, this method is called shortcut method. First of all, we have to draw 4 columns also. 1, 2, 3, 4 columns. Okay, and we will also attend this formula. AQ in the first column, 3a square b in the second column, 3ab square in the third column, and last one will be the BQ. And here is the question 29Q. We have to find out what will be the result of 29Q. Okay, and or you can also say that when we will multiply 29 by 3 times, then what will be the result. Okay, here we find a in that is as a 2. 2 is the first, this is the tens digit, and we will use a. Okay, and this one is the ones digit 9 is also as a b. Okay, and so we will use 2 as a and 9 is as b. And now using this formula, aq plus aq 3a square b 3ab square and bq in other columns. Okay, separate columns they have. And now in place of aq, that is 2 ka q, 2q also 2q. Okay, and now 2 into 2 into 2, that is 2 to 4 to 8, and here is 3a square b, 3 into 2 square into 9, and now 3 into 2 into 2, 2 times is given, and into 9, and also 3 into 2 into 9 into 9. Okay, and now after multiplying this one, we will get 108. Okay, here is also we will find after multiplying 486. Okay, and now this one 9 into 9 into 9, we will get 729. Okay, and now we will use from the right one BQ, we will use the last one column, that is, this will be the first column from the right. Okay, and BQ is the this the first digit we will use as a result. Okay, 9, and now this 72 is left. 72 is also added to the second column, that is 486 plus 72, it will come 558, and now 55 is also left, and this will be goes to the third column, and after adding 108 plus 55, we will get 163, and now this also 16 is the will go to the next column, and fourth one column, that is 8 plus 16 is this one 16. So 8 plus 16 is 24. Now we will use as an answer in the first column from the right ones first digit, and also in the second column this one unit digit, and also from the third column also unit digit, and the last one column, that is the outermost, that is the left most left column, is the all the digits we will use, 24, and this one 3 and 8 and 7, and this will be the result. After multiplying 29 by 3 times, we will get 24389. This is the result. Okay, and now the second question is also once more question, 71 cube. We have to find out 71 cube. So we will use a as a 7 and b as a 1. Okay, and now using the as previous question, aq 3a square b 3ab square bq, and we will use 7 as in place of a,
and 1 in place of b, or now using this one 7 cube, that is 7 into 7 into 7, it will give 347. And now this one 7 square, 7 into 7, and after multiplying this one we will get 147. And here is the 1 square also. After multiplying we will get also here 21, 3 7s are 21, 21 is given here. And now we will use the digit, that is digit, this one is the last one digit from the outermost, that is the from the right one, this first digit, and also this will be the first digit, that is one's digit, and will so this is also the first digit, that is outermost from the, that is unit digit. And now we will get here, that is 357, we will use all the 3 digits. Okay, and so the result will be 357911. This is the result of the following digit. Okay, and this is the result of 71 cube. After multiplying 71 3 times we will get 357911. Okay, and now there is the last question, is that evaluate cube root of 216. And we will first we will prime factorize of the 216. We will get this one to 108 2 ja, this one also 54 2 ja, and now 27 2 ja, and now 3 9 ja 27, and 3 3 ja 9. Okay, and now we will get this here factorization of 216, 2 into 2 into 2. And now we will use these the 2 and 3 are in triplets. Okay, this is the set of 3 digit. Okay, 2 2 2 also, because it is, we have to find out cube root of 216. And so we will use under the root, that is in place of 216, 2 2 2 also here, and 3 3 3 here, and 2 is the 3 times, so we will use 2 to the power 3, and also 3 to the power 3. And after that this 3 and 3 will come at exponent, then it will be cancelled, root will be cancelled, and we will get only 2 into 3, that is 2 3 is 6. Okay, 2 is 6, 6 is the cube root of 216. वंस अगेन एक बार फिर मैं बता दूं आप सबको, आप गौर से देखेंगे, ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर हमारा है, और इसे हम लोग फिर से इसमें 2 क्वेश्चन हमने यूज़ किया है, 2-3 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। 2 क्वेश्चन है, पहला कि फाइंडिंग क्यूब्स ऑफ पर्टिकुलर मेथड, एक मेथड के सहारे हम लोग इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं, उसके सहारे 2 डिजिट का क्यूब कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और दूसरा है फिर क्यूब रूट निकालेंगे हम लोग, फिर इस तरह से देखेंगे एक एक करके हम लोग। देखिए कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ेंगे चैप्टर हम लोग आगे, फिर उसमें ये फार्मूला काम आएगा, जिसको आइडेंटिटी कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के रूप में हम लोग मानते हैं, इसको कहते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हमारा फार्मूला है हमारा, खास करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम लोग 4 कॉलम में इसके बांट देते हैं। देखिए 1 2 3 4 कॉलम में हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं। और ये क्वेश्चन एक हम लोग यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल के रूप में, 29 का क्यूब, इसे हम लेना है, इसे हम क्यूब निकालेंगे बाय शॉर्टकट मेथड इसे कहते हैं। तो कॉलम के रूप में 4 कॉलम में बांट दिए हम लोग। फिर ये फर्स्ट जो इधर से डिजिट है, जिसको 10th डिजिट कहेंगे, वो उसको a मान लेते हैं, और ये 1st डिजिट को, इन्हीं डिजिट को b मान लेते हैं। तो ये a हमारा 2 हो गया, और जो इन्हीं डिजिट है b हमारा 9 हो गया। तो यूज़ करें हम लोग क्या, a क्यू, और ये जो देख रहे हैं फार्मूला हम लोग, ये इसी के लिए 4 कॉलम हम लोग यूज़ करेंगे, a क्यू 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यू। इस तरह से हम लोग ये a के जगह पर 2 यूज़ करेंगे, और b के जगह पर हम लोग 9 यूज़ करेंगे। अब देखिए a क्यूब है, 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स लिख दिए। फिर ये देखिए a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, फिर ये 3ab स्क्वायर, देखिए 3 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9, और ये b क्यूब है 9 इंटू 9 इंटू 9, इस तरह से यूज़ कर दिया हम लोग। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 729 आएगा। फिर ये देखिए सारा मल्टीप्लाई करें तो 486 आएगा। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करें वो 108 आएगा। और फिर ये हमारा जो है यूज़ करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 8 आएगा। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से, फिर से देखें, इसको देखेंगे, ये प्लस किया हुआ है, देख रहे हैं हम लोग, ये प्लस किया जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए ये छूटा हुआ था, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये अब हम लोग जो आंसर लेंगे उसके लिए देखिए आप गौर से यहाँ पर वॉच कीजिएगा। देखिए लास्ट ये जो हमारा अंतिम जो कॉलम है, राइट फ्रॉम द राइट, सबसे लास्ट वन किनारे की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से, तो ये देखिए 9 हमारा है, ये इन्हीं डिजिट लेते हैं सबका, इन्हीं डिजिट
ले लिए, 9 इसका यूनिट डिजिट है। या देखिए यहाँ पे 558 का फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट ले लिए, फिर इसका भी 163 का यूनिट डिजिट ले लिए, और ये है हमारा 24। अब इससे पहले एक चीज़ और जान लें, ये जो बगल का 2 डिजिट जो बच गया 72, वो आगे में हम लोग पास आउट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इसको जोड़ देते हैं, एडिशन करते हैं। तो 486 रिजल्ट, तो उसमें 72 जोड़ेंगे, 558 आए। ये जो फिर 8 आ गया यूज़ होगा हमारा आंसर में, ये 55 को आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए फिर हमने जोड़ा है इसको, 108 को 55 से 163 आया, और फिर ये 3 देखिए यूनिट डिजिट यूज़ होगा कि, और ये 16 फिर आगे बढ़ जाएगा। तो देखेंगे 8 + 16 24। ये आंसर जो हम लोग देंगे, ये किनारे का सब डिजिट जितना कॉलम है सबका, ये एक यूनिट डिजिट लेंगे, यहाँ भी देखिए यूनिट डिजिट लेंगे, यहाँ भी यूनिट डिजिट, और सबसे लास्ट कॉलम जो हमारा है फ्रॉम द राइट तरफ से, उसमें जितना डिजिट आएगा, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, सबको ले लेंगे। 2 या जितना डिजिट हो सब ले लेते हैं। देखिए 24 पूरा आ गया डिजिट ये, तो आंसर आएगा 24389, ये आंसर आएगा 24,389। अब जब आप इसको रफली मल्टीप्लाई कीजिएगा 29 को 3 बार 3 टाइम्स, तो यही आंसर आपका आएगा। ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया, कॉलम यूज़ करेंगे और आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हमारा 71 का क्यूब। यहाँ देखिए हमने यूज़ किया ए के जगह पर 7 और बी के जगह पर 1 हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करें, फिर यहाँ पे यूज़ किया हम लोग ए क्यूब 3a² b 3ab² b क्यूब। पहले कॉलम, पहले जो क्वेश्चन उसकी तरह है, 4 कॉलम, इसको भी 4 कॉलम में बांट दिए हम लोग। और ये देखिए ए के जगह 7 का क्यूब, यहाँ पे देखिए 3a² b 3 इंटू ए के जगह पर हम लोग 7 यूज़ किया, बी के जगह पर 1 यूज़ किए, और वही सारा है। फिर इसको आपको अलग अलग तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 तो आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 3 टाइम्स 343, और ये 3771 मल्टीप्लाई करें 147, और ये 3711 मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा। 3 7 21 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 21 ही आएगा। और ये 1 इंटू 1 इंटू दैट इज़ 1, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कैरी आएगा, कैरी जब आता है तो उसको बगल वाले को आगे शिफ्ट कर दिया। देखिए यहाँ 1 है, बगल में कुछ ये कैरी नहीं है, इस कारण से 1 पूरा ले लेते हैं यूनिट डिजिट। यहाँ देखिए एक यूनिट डिजिट हम लोग इसमें भी यूज़ किया है। ये बगल में 2 है, 2 आगे पास हो जाएगा आगे वाले कॉलम में, तो ये 147 + 2 149। फिर देखिए 9 आ गया, और फिर ये 14 जो बच गया फिर आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये 343 + 14 357। तो आंसर हमारा आएगा, आंसर में ये किनारे से सब एक एक डिजिट लेंगे, ठीक है। ये 3rd कॉलम में, लास्ट कॉलम है, 4th कॉलम से एक डिजिट यूनिट डिजिट, 3rd कॉलम से यूनिट डिजिट, फिर 2nd कॉलम यूनिट डिजिट, और ये जो 1st कॉलम जो हमारा फ्रॉम द लेफ्ट है, वो ये पूरा का पूरा डिजिट आएगा 357911, ये हमारा आंसर आएगा। आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 71 को 3 टाइम्स, तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक तीसरा क्वेश्चन है, हम लोग इवेल्युएट लिखे हैं, ऐसे फाइंड आउट करना है हम लोग को 216 का क्यूब रूट। ये क्यूब रूट का ये सिंबल है, ये 3 देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट रहता है तो केवल रूट देते थे हम लोग, ये क्यूब रूट है इसलिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है इसका, ठीक है। देखिए हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 216 का। देखिए 2 से 108, ये 2 से लगाएंगे, फिर 254 आएगा, 2 से लगाएंगे 27, अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाएंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल, सारा डिजिट हम लोग लिख देंगे। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये सारा डिजिट यहाँ आएगा। और तब क्या करेंगे, ये देखिए क्यूब रूट लिख देंगे, 216 का क्यूब रूट है, तो देखिए क्या 2 3 टाइम्स है और ये 3 3 टाइम्स है, लिख दिए हम लोग। ये 2 है हमारा 3 टाइम्स, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे, ये 3 भी 3 टाइम्स, 3 का पावर 3 लिखेंगे। इसके बाद ये रूट जो है, ये रूट क्यूब रूट है, इस कारण से ऊपर के ये जो एक्सपोनेंट जो 3 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट भी खत्म हो जाएगा, बच गया केवल क्या हमारा बेस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये हमारा आंसर आया। इस तरह से वीडियो अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, आप सब पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा, इसको बहुत समझ में आएगा और आगे बढ़ाइएगा। और ये क्वेश्चन हमें दीजिए, लिख करके दिखाइएगा, मैं इसे वाच कर अच्छी तरह से देख दूंगा। और फिर आप सबको एक बार फिर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम टू ऑल ऑफ यू, once again thanks to you।